This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy. Batch is the Purusharth Crash and Revision course. Chapter number 16, Electrostatic Potential and Capacitance. And you know this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the chapter is 16 and lecture number 2. Topic and subtopics are मेरे द्वारा selected question जो इस chapter में हम लोग करेंगे. Question is here, 2 point P and Q are maintained at the potential of 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P and Q is what? देखो Q कितना है, चार्ज कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन. So you can say that minus 100 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 17 coulomb. Yes or no? Change Yes, sir. potential is equal to potential in Q minus potential due to P. So कितना था, minus 4 volt minus 10 is equal to minus 14 volt. Work done is equal to charge into change in potential. So you know minus 14 into minus 1.6 into 10 to the power minus 17, minus minus plus 14 into 1.6 into 10 to the power minus 17 जूल. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए. 14 into 1.6 is equal to 2.24 into 10 to the power minus 16 joule. This is your final answer. Option is D number. Yes or no? Yes, sir. Next question. Thin spherical conducting shell of radius r has a charge q. ठीक है, एक कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस r है और इस पे चार्ज क्या है, स्मॉल q. Another charge capital Q is placed at the center of the shell. The electrostatic potential at a point P at a distance of r by 2, माना यहाँ बीच में कहीं, यहाँ पे r by 2 डिस्टेंस पे, from the center of shell is what? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. पूरे Yes, शेल sir. पे चार्ज Q है, कैपिटल Q को सेंटर पे रखा गया है. ठीक है, मैं फिगर प्रॉपर अच्छा से बना देता हूं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए. ये एक शेल है, यहाँ पे चार्ज Q है जिसकी रेडियस r है और यहाँ पे r by 2 डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जो पॉइंट P है और यहाँ पे टोटल Q चार्ज यहाँ पे है. तो यू नो पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज Q ऑन द स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा, V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into charge upon radius. क्लियर है? Yes, sir. इस Q की वजह से निकाला है मैंने. अब इस Q की वजह से निकालेंगे तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू द कैपिटल Q. So you can say that 1 upon 4 pi epsilon naught into capital Q into r by 2 is equal to 2Q upon 4 pi epsilon naught r. Yes or no? Yes, sir. So you can say that net potential at P V is equal to V1 plus V2. So 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R plus 1 upon 4 pi epsilon naught into 2Q upon capital R. Yes or no? Yes, sir. तो आंसर कौन सा है देखिए तो, ए नहीं है, बी नहीं, सी नंबर 2Q upon 4 pi epsilon naught R plus Q upon 4 pi epsilon naught R. Your answer should be C number. Two spherical conductors A and B of radii 1 millimeter and 2 millimeter are separated by a distance of 5 centimeter. ये 1 millimeter का है रेडियाई और ये 2 millimeter रेडियाई है. Separated by distance of 5 centimeter. इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 5 centimeter. And are uniformly charged if the spheres are connected by a conducting wire. ठीक है, then in the equilibrium condition the ratio of the magnitudes of the electric field at the surface of spheres A and B what? ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, माना E1:E2 क्या होगा. पहली बात समझो, जब इसको कंडक्टर से तुम ज्वाइंट कर दी हो तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. Yes, sir. So after joining I can say that
V1 is equal to V2. So you know 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 by R1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q2 upon R2. 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught is cut. Q1 upon R1 is equal to Q2 upon R2. Yes or no? This is the equation number first. हमें E1 और E2 का रेशियो निकालना है, तो E1 is equal to 4 pi epsilon naught into Q1 upon R1 square, and E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q2 upon R2 square. So what is the ratio of E1 and E2? So you can say E1 upon E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught कट गया, तो Q1 upon Q2 into R2 square upon R1 square. तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 upon Q2 is equal to R1 upon R2. ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R1 upon R2 into R2 square upon R1 square, कैंसिल. सो यू नो हियर R2 upon R1. अब इसका रेडियस कितना है, R2 का 2 मिलीमीटर, R1 का रेडियस क्या है 1 मिलीमीटर. आंसर इज 2:1. So your answer should be A number. Yes or no? Yes, sir. Next question. पढ़ के सुनाइए 4th number question. A charged particle Q is shot towards another charged particle Q, capital Q, which is fixed with a speed v. It approaches up to a closest distance r and then returns. If small q was given a speed 2v, the closest distance of approach would be. ये चार्ज यहाँ से जाता है, लेकिन उस चार्ज के रिपल्सन के कारण लौट के ऐसे आ जाता है. ठीक है, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वुड बी व्हाट. क्वेश्चन ये है. तो व्हेन चार्ज Q इज शॉट विद अ वेलोसिटी v, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज इज, ठीक है, ऑफ चार्ज Q, मैं ऐसा लिख देता हूं, इज इक्वल टू, यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एंड कैपिटल Q, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी लगाएगा उतना वो पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, तभी तो वो रिटर्न हो जाता है. तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू क्यू क्यू अपॉन आर. ये समझ में आया या नहीं आया? देखो ये दोबारा बताइए. चार्ज, जो स्मॉल क्यू चार्ज को जब मैंने फेंका तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी. Yes, sir. तो उसने जो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज किया तो पोटेंशियल एनर्जी ने उसको बैलेंस किया. अदरवाइज नहीं, अगर पोटेंशियल एनर्जी लगता तो ये चार्ज जाके क्यू के पास चिपक नहीं जाता. Yes, sir. ठीक है. यहां तक समझी मेरी बात? Yes, sir. अब जब इस चार्ज को 2v वेलोसिटी से फेंक रही हो, ये तो पहला कंडीशन हुआ. अब दूसरा कंडीशन, व्हेन द चार्ज Q is shot with a speed 2v, तब क्या होगा? तो उस समय में r डैश रेडियस ऑफ अप्रोच लेट कर लेते हैं, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r डैश लेट कर लेते हैं. तो क्या होगा, हाफ इंटू m इंटू 2v स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू क्यू क्यू अपॉन r डैश. यस और नो? Yes, sir. कितना इजी है. अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. 2 स्क्वायर बिकम 4, ठीक है, 4 इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन 2. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, और इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दो. तो 4 इंटू के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, यहां से हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू यू नो के स्मॉल के क्यू क्यू अपॉन आर डैश. यस और नो? इज इक्वल टू यू नो स्मॉल के क्यू क्यू अपॉन आर डैश. पहले समझी या नहीं समझी, फिर से देखो. ये 2 स्क्वायर, देखो 4v स्क्वायर हुआ, 4 को बाहर कर दिया, तो Yes, हाफ sir. एम वी स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए. तो 4 इंटू के क्यू क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर डैश. यू नो के क्यू क्यू ये सारा कैंसिल हो गया. ठीक है, सो यू नो आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 4. सो योर आंसर शुड बी आर अपॉन 4, डी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. you know this is very very important question, लिख लीजिएगा, very very important.
two thin wire rings each having radius capital R. इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी भी रेडियस कैपिटल आर है. Placed at a distance of d apart. दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? d है. With their axis coinciding, the charges on the two rings are plus q and minus q. यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है. The potential difference between the center of the two rings is equal to what? So easy. पहले पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ए पर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बी पर निकाल लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे. क्लियर है मेरी बातें? देखो Yes. ये इस पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर इस पे पोटेंशियल निकाल लेंगे. तो यू नो VA इज इक्वल टू, यू कैन से दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इसकी वजह से पहले निकालिए, तो स्मॉल q अपॉन कैपिटल आर. अब इसकी वजह से निकालो, तो माइनस q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यस और नो? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है. पहले इस प्लस क्यू की वजह से निकाला, फिर इस माइनस क्यू की वजह से निकाला, और दोनों को ऐड कर दिया. सिमिलरली पोटेंशियल एट बी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे इसकी रेडियस कैपिटल आर और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस, और यहाँ डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. Question is here, what is the difference? So I can calculate here VA minus VB. So 1/4 pi epsilon naught is constant, which is common. So Q upon R minus Q upon under root R square plus D square. अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो Q अपॉन R प्लस माइनस माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. देखो ये प्लस क्यू बाय आर, ये भी प्लस क्यू बाय आर, न ट्वाइस हो गया, और इसके बाद ये माइनस सेम सेम है, तो ट्वाइस हो गया. तो आई कैन से दैट क्यू इज कॉमन, तो 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. लेकिन ऑप्शन में जो है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिया है ना शायद. क्यू बाई Yes, sir. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई. हाँ, तो इसको कट कर दीजिए, तो यू नो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 upon r square plus d square. So your answer should be B number. Clear है? Yes, sir. Next question. Charges are placed on the vertices of a square. ये स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज है, A पर चार्ज है B Q, B पर है Q, C पर है माइनस Q, D पर है माइनस Q. Let E be the electric field and V is the potential at center. ठीक है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल V है. If the charge on A and B are interchanged with those on D and C, जो A पर है उसको D के जगह वाला, और D को A पर रख दिया, और C को मतलब B वाला जो है B पर C रख दिया, मतलब माइनस क्यू चार्ज रख दिया. देन कहते हैं क्या होगा, इसमें क्या चेंज होगा, ये क्वेश्चन है हमारा. पहले समझो, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर प्लेस होता, ठीक है, तो यू नो this will repelled by A and B and attracted by D and C. Yes or no? Yes, sir. The net field V will in the downward direction. When the charges are interchanged, the direction of field is reversed. क्योंकि देखो ये प्लस प्लस है, रिपल्सन इधर हो रहा है, इसकी वजह से रिपल्सन इधर हो रहा है. लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूंगा, तो उस बार डायरेक्शन इधर 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 हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. इसकी वजह से इधर हो जाएगा, इसकी वजह से इधर, मतलब रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएंगे. ये पहली बात हुई. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो जीरो रह जाएगा. ठीक है, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा. तो इसका आंसर देखिए कौन सा नंबर है. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेज, वी रिमेन्स अनचेंज्ड, ए नंबर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electric charge 10 to the power minus 3 microcoulomb is placed at the origin 0,0 of XY coordinate system. 2 points A and B are situated at root 2, root 2 and 2,0 respectively. The potential difference between the points A and B will be what? तो पहले ये R1 डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, R2 डिस्टेंस लेट कर लेते हैं. तो R1 इज इक्वल टू यू नो OA
इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 2 + 2 4 का रूट बिकम 2, ठीक है। एंड R2 इज इक्वल टू यू नो दिस इज द OB is equal to 2 minus 0 0 minus 0 become 2 minus 0, answer is 2. So potential at A is equal to, I can say that 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R1, ठीक है। तो 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 is here, Q1 क्या है 10 to the power minus 3, ठीक है, into यहाँ पे 10 to the power minus 3 है ना, और situated to the respectively, you know, तो 10 to the power minus 3 microcoulomb into 10 to the power minus 6, distance R1 is equal to 2. सिमिलरली VB निकाल लीजिए, पोटेंशियल एट B, मैंने इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, यू नो 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2. So you know 1 upon 4 pi epsilon naught into Q is equal to 10 to the power minus 3 microcoulomb, ठीक है। R2 is equal to also 2. अरे दोनों तो सेम ही आ रहा है भाई, देखो ये VA भी वही आ रहा है जो VB आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो दोनों का डिफरेंस 0 नहीं हुआ। So you Yes, can say sir. that VA minus VB is equal to 0. Your answer is C number. Next question. The potential at a point X due to some charges situated on the x-axis is Vx is equal to 20 upon x square minus 4. Electric field E at x is equal to 4 micrometer is what? पहली बात जानिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन आर इक्वल टू माइनस dV by dr, yes or no? So you can say that Vx is equal to 20 upon x square minus 4 volts and E is equal to dB by dx, yes or no? तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 20 इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 0, यस और नो? तो 2x इंटू Yes. 20 बिकम माइनस 40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। अब at x is equal to 4 micrometer. So question is here, at x is equal to 4 micrometer. So E is equal to, you can say that 40 into x, ठीक है, मैग्नीट्यूडली ले रहा हूं मैं, माइनस साइन यहाँ पे हटा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू माइनस dB by dr होता है ना, तो मैग्नीट्यूडली ले लेते हैं, ठीक है। तो 40 into 4 अपॉन 16 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो यू नो 14 इंटू 4 अपॉन 16 माइनस 4 12, 12 स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 10 जा, यू नो 10 अपॉन 9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। और किधर डायरेक्शन इसकी होगी, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आई कैन से दैट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसका Yes, sir. आंसर क्या होगा, ए नंबर, 10 by 9 volt per micrometer and in the positive x direction, ठीक है। So your answer should be A number. The electrostatic potential inside a charged spherical ball is phi equal to AR square plus B, ठीक है। ये पोटेंशियल का ये दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। When R is the distance from the center, AB are constant, then the charge density inside the ball will be what? So you know, question is here, potential phi is equal to AR square plus B. Electric field E is equal to you know minus d phi upon dr, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 2AR by माइनस साइन। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ यू कैन से दैट E इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, तो E कितना हो गया माइनस 2AR, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds क्या होगा 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? देखो ना, हमने चार्ज को क्या लिखा, चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये ओम्स गॉस थ्योरम पता है ना, कि क्लोज Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विच इज कॉल्ड फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही लगाया मैंने। अब देखिए 4 पाई कट, आर स्क्वायर कट, और यहाँ पे आर क्यूब है, तो ये आर क्यूब कट, 3 को इधर लेते आइए, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेते आइए। तो यू नो रो इज द हियर, डेंसिटी इज हियर -6 a एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर इज हियर -6 6a एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए तो जरा। यस, Sir, -6 R भी आ रहा है उसमें, तो 6 Q epsilon naught है। दे रखा है। ठीक है, तो आंसर तो ये होना चाहिए ना। रुक जाओ, क्यू का टर्म में तो दिया ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, पर कुछ नहीं, इसको ये कर देते हैं ए के फॉर्म में। आंसर इज डी नंबर। क्लियर है? Okay, sir. Assume that an electric field E is equal to 30x square I cap exists in space. Then the potential difference VA minus V naught, where V naught is the potential at the origin and VA is the potential at x is equal to 2 meter. So you know E equal to minus dV by dx. So I can say that dV equal to minus vector of E dot dx. टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V नॉट टू VA इज इक्वल टू माइनस इज आउट 30x स्क्वायर dx, क्योंकि 30x स्क्वायर आई कैप दे रखा है, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 मीटर तक। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA माइनस V0 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, हियर 30 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बोल दिया, 0 से 2 तक। ठीक है, अब 3 से इसको कट कर दीजिए 10, तो VA माइनस V नॉट इज इक्वल टू -10 इंटू हायर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर, हायर लिमिट क्यूब, सॉरी 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो यू नो 2 क्यूब 8 minus 10 become -80. So you know VA minus V naught is equal to -80 volt. So your answer should be C number. Clear है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। An electric field vector of E is equal to 25 I cap plus 30 J cap Newton per coulomb exists in a region of space if the potential at the origin is taken to be 0 and the potential at x is equal to 2 meters, y is equal to 2 meters is. ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर एंड y इक्वल टू 2 मीटर, तो v इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटू ई एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक, 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक, माइनस ई वाई डी वाई, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 2 तक। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस ये 25 आई कैप और dx आई कैप, तो ये क्या हो गया 25 dx फ्रॉम 0 to 2, एंड हियर इट इज द 30 dy सॉरी फ्रॉम 0 to 2। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बिकम x फ्रॉम 0 to 2 -30 integration of x 1 is equal to y from 0 to 2 -25 into 2 minus 0 -30 into 2 minus 0. So you know -25 into 2 become -50 and -60. Answer is the -110 joule. So your answer should be A number. Next question पढ़ के सुनाइए। The charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O lying at distance L from the end A is. ठीक है, अब देखो रॉड यहाँ पे है, Q charge uniformly distributed over here. The electric potential at point O lying at distance L from the end A, मतलब यहाँ से ये distance L है,
ठीक है, कहता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सो यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x फ्रॉम, अब देखो यहाँ से एक्चुअल में रॉड तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ये L हो गया, ये 2L हो गया ना, L से लेकर 2L तक। क्लियर है? क्योंकि अगर यहां से होता, O से होता, तो मैं 0 से लेकर 2L तक लिखता, लेकिन L से 2L तक है, क्योंकि चार्ज तो यहीं पे ना, इधर तो है ही नहीं, तो मैं L से 2L तक निकालना है। देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू लैम्डा dx अपॉन x फ्रॉम L to 2L। ठीक है, so lambda is constant, तो lambda upon 4 pi epsilon naught 1 upon x dx क्या होगा, log x from L to 2L। ठीक है, so lambda upon 4 pi epsilon naught log higher limit minus lower limit माने 2L upon L, L cut, your answer should be lambda upon 4 pi epsilon naught log 2। so answer is D number। ठीक है, अब लेमडा को यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चार्ज के फॉर्म में, क्योंकि लेमडा अपॉन एल है ना, तो इसलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूँ पहले। लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एल, सो आई कैन राइट क्यू log 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। A uniformly charged solid sphere of radius r has potential V0 measured with respect to infinity on its surface. For this sphere, the equipotential surfaces with potentials 3V0 by 2, 5V0 by 4, 3V0 by 4, and V0 by 4 have radii R1, R2, and R3 and R4 respectively. Then ये एक्चुअल में मेंस का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टफ है, मैं लिख देता हूँ टफ क्वेश्चन। ये जनरली नीट में कम आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्किल बताने के लिए कि हाई लेवल के क्वेश्चन में अगर हाफ हाफ पार्ट पूछ लेगा तो कैसे करोगे, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या कह रहा है, पहले सरफेस पे निकाल लेते हैं। तो ऑन द सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो आई कैन से दैट वी नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही फॉर्मूला होता है। yes, sir. Inside the sphere, I can say that R is less than R. Then you can say V is equal to KQ upon 2R cube into 3R square minus R square, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है वहां पे, इसलिए। तो एट द सेंटर R is equal to 0, तो पुट कर दीजिए, तो V is equal to 3KQ upon R into 2, ये भी तो है ना, इज इक्वल टू 3/2 KQ अपॉन R को V नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई कैन से दैट द रेडियस इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर पे निकाल रहे हैं। एंड एट R इज इक्वल टू R2 आई कैन से दैट V इज इक्वल टू KQ अपॉन 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो R क्यूब R स्क्वायर कट कर दीजिए, पुट कर दो, तो 5 3 4 3 1 5, तो 5 V0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 4 KQ अपॉन R। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5/2 इज इक्वल टू 3 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R। सो R2 इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, तो 3 माइनस 5/2, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर है, दूसरी साइड रूट में ले जाइए, तो R अपॉन √2। नाउ outside the sphere R is greater than R, then V is equal to KQ upon, ठीक है, R। ठीक है, तो एट R is equal to, ये स्मॉल r हो जाएगा, एट स्मॉल r is equal to R3 बोला है ना, हाँ R3, so I can say that 3V0 upon 4 is equal to KQ upon R3 is equal to V0 R upon R3, इसको कट कर दीजिए, सो R3 इज इक्वल टू 3/4 था, 4/3 हो जाएगा, 4/3 R। ठीक है, सो नाउ एट R इज इक्वल टू
New. Now you at R is equal to R4. So V0 by 4 is equal to KQ upon R4 is equal to V0 R upon R4. So I can say that R4 is equal to, cut कर दीजिए तो 4R, which is the greater than 2R. तो R4 minus R3 is equal to 4R minus 4R by 3. ठीक है, तो 4 3 जा 12 minus 4 8R by 3 which is greater than R2. ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए. ऑप्शन ए नंबर इज नो. B number R1 not equal to 0, R2 minus R1 greater, no. C number R1 is equal to 0 and R2 is less than R4 minus R3. Yes, C. और 2R is less than R4, ये भी सही है. Your answer should be C and D. Next question. Capacitance of a, ठीक है, spherical conductor of radius 1 meter is what? कितना इजी है. C is equal to 4 pi epsilon naught R. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/9 इंटू 10⁹. रेडियस कितना है? 1 मीटर. आंसर कितना हो गया? 1/9, 0.11. तो यू नो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फैराड. सो योर आंसर इज ए नंबर. कितना इजी क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन ने हालत खराब कर दी. ये क्वेश्चन इजी, लेकिन वो क्वेश्चन जो है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, लेकिन टफ क्वेश्चन भी थोड़े करने ही चाहिए. Yes. पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन नंबर 15. The work done in placing a charge of 8 into 10 raised to minus 18 coulomb on a capacitor of capacity 100 microfarad is. ठीक है, अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू यू नो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. तो 1/2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -18 होल स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेराड में 100 इंटू 10 टू द पावर -6. अब 8 स्क्वायर 64 अपॉन 2 बिकम 32 इंटू 10 टू द पावर 36. Sir, into 2 भी करना ना. हाँ तो किया तो 8 स्क्वायर 64 अपॉन 2 32 इसलिए तो लिखा मैंने. ठीक है, नहीं सर, क्या बोलो? 100 नीचे by 100 into 10 to the हाँ तो minus 10 6 पर लिखा 2 है इसको ना. लिखूंगा 10 पर 2 और 10 पर -6 तो बिकम -4. ऊपर लेके गए +4 इज इक्वल टू -32 जूल. सो 32 इंटू 10 टू द पावर -32 जूल. योर आंसर शुड बी डी नंबर. A parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by a distance of 5 millimeter and with a dielectric of dielectric constant 2.2 between them. When the dielectric field in the dielectric is 3 into 10 to the power 4 volt per meter, the charge density of the positive plate will be close to what? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए. अगर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो सिग्मा इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E. तो पुट कर दीजिए तो 2.2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. E का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4. सॉल्व कर लीजिए. इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर. सो योर आंसर शुड बी ए नंबर. नाउ two capacitors C1 and C2 are charged to the 120 volt and 200 volt respectively. It is found that by connecting them together, the potential on each one can be made zero. Then, तो पहले ये 120 C1 है, ये 200 C2 है. ठीक है, 120 इस पे क्या है? पोटेंशियल है. C1 कैपेसिटी है, 200 पोटेंशियल है और C2 कैपेसिटी है. So for potential to be made zero after the connection, so I can say that voltage into capacity is the charge 120 C1 is equal to 200 C2. 0 0 कट कर दीजिए इसको. 4 3 जा 4 5 जा. So I can write here 3 C1 is equal to 5 C2. So your answer is B number. Next question. If there are n capacitors in parallel connected to V volt source, then the energy stored is equal to what?
सो यू नो पैरेलल कनेक्शन है, तो फॉर पैरेलल कनेक्शन you know potential is constant, so energy U is equal to N into energy stored in a single capacitor. Yes or no? Yes, sir. So it is equal to N into half CV square. So your answer should be U is equal to N into half CV square. So your answer is B number. Next, a parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plates connected alternately. If the capacitance between any two adjacent plates is C, then the resultant capacitance is equal to what? देखो टोटल अगर n है तो कैपेसिटर कितना बनेगा n-1, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा n-1 इंटू सी। मान लो 3 प्लेट है तो कैपेसिटर कितना बना 1 और ये 1 2 बनता है, तो n नंबर -1 हो जाएगा ना, तो n-1 इंटू सी, सो योर आंसर इज ए नंबर। A fully charged capacitor has a capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of a specific heat capacity is S and mass is M. If the temperature of the block is raised by delta T, then the potential difference V across the capacitor is what? You know, energy released by the capacitor equal to heat gained by the block. Yes or no? Yes, sir. मैं लिख रहा हूं एनर्जी रिलीज बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द ब्लॉक, ये ना होगा। अब क्या कीजिए, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हीट गेन का क्या फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T, तो हमें क्या निकालना है V निकालना है, तो आई कैन से V इज इक्वल टू √2 इंटू M इंटू S इंटू डेल्टा T अपॉन C। सो योर आंसर इज 2MS डेल्टा T, आंसर इज डी नंबर। ठीक है, नहीं, आंसर इज हियर 2MS डेल्टा T अपॉन C। यहाँ S लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, अच्छा कैपेसिटर C, हाँ डी नंबर आंसर। क्लियर है? Yes, sir. A battery is used to the charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates become equal to the electromotive force of the battery. The ratio of the energy stored in the capacitor and work done by the battery will be what? ठीक है, पहले देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू यू नो Q इंटू V इज इक्वल टू CV स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी। और एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ CV स्क्वायर, आधा हो जाता है, तो U अपॉन W इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर अपॉन CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर कट, आंसर इज हाफ, योर आंसर इज ए नंबर। क्लियर है? Yes, sir. नाउ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं, ये तो पता ही है, with a dielectric of dielectric constant K between the plates has a capacity C and is charged to a potential of V volt. The dielectric is slowly removed between the plates and then reinserted. The net work done by the system in this process is what? ठीक है, you know the potential energy stored in the charge capacitor क्या फॉर्मूला होता है, Q square upon 2kc. When the sheet is removed, ठीक है, dielectric sheet is removed, so you can say that U final is equal to Q square upon 2c. When the dielectric is again inserted, the energy again decreases from UF to the UI. इसमें देखो, इसमें इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, तो नेट वर्क डन क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, आफ्टर अगेन इंसर्शन, ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, सेम एनर्जी डिक्रीजेस, तो आई कैन से दैट वर्क नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0, सो योर आंसर इज ए नंबर। देखो पहले डाइलेक्ट्रिक को घुसा के रखा हुआ है, तो एनर्जी हो गई Q स्क्वायर बाय 2kc, निकाल दिया Q स्क्वायर बाय 2c, एनर्जी जो है बढ़ गई अब, ठीक है,
फिर इंसर्ट कर दिया तो फिर घट गई, जीरो, वर्क डन जीरो। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 9 picofarad. The separation between its plate is now filled with two dielectrics. One of the dielectrics has dielectric constant K1 equal to 3 and thickness is the D by 3, while the other one has the dielectric constant K2 is equal to 6 and thickness is the 2D by 3. Capacitance of the capacitor is now what? You know, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दैट इज द 9 पिकोफैराड। ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक C इज इक्वल टू K इनटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जब डाइलेक्ट्रिक हम लोग विद डाइलेक्ट्रिक, एंड यू नो C1 इज इक्वल टू 3 इनटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, विच इज द D नहीं D बाय 3, तो 3 को ऊपर ले जाओ तो 9C हो गया। ठीक है, C2 is equal to 6 into epsilon naught A upon 2D by 3, तो 6 से जाए 18 by 2, 9 हो गया, माना 9C। यस और नो? अब C1 और C2 दोनों क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो C1 and C2 are in series, so I can say that C final is equal to C1 into C2 upon C1 plus C2, so 9 into 9, 9C into 9C अपॉन 9C प्लस 9C, तो 9 9 जा 81C स्क्वायर अपॉन 18C। ठीक है, तो आंसर इज, इसको ऐसा कर लेते हैं ना, 9C इंटू 9C अपॉन 18C, C कट, 9C इसको कट कर दीजिए, 2 2 2, तो 9 बाय 2C। ठीक है, और C की वैल्यू कितनी थी, 9 पिकोफैराड, तो 9 9 जा 81 अपॉन 2। ठीक है, माइक्रोफैराड, सॉरी पिकोफैराड, पिकोफैराड था ना, पिकोफैराड। अच्छा, ये डेसिमल में दिया है, तो 81 बाय 2 कितना हो गया, 40.5 पिकोफैराड। सो योर आंसर शुड बी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है? योर आंसर शुड बी Yes, sir. डी नंबर। नेक्स्ट, the capacitance of a nano capacitor is measured in terms of a unit U made by combining the electronic charge E, bore radius A0, Planck's constant H and speed of light is C. Then कहता है इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो इसके लिए डायमेंशन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E टू द पावर A, डायमेंशन ऑफ A0 टू द पावर B, डायमेंशन ऑफ H टू द पावर C एंड डायमेंशन ऑफ C टू द पावर D। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रख दीजिए, यू नो कैपेसिटेंस ऑफ अ नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट U। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है कैपेसिटेंस का, तो m टू द पावर -1, L टू द पावर -2, T टू द पावर 4, A टू द पावर 2। यहाँ पे E है, मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है यहाँ पे, एम्पियर इनटू टाइम, तो एम्पियर टाइम टू द पावर A0 क्या है, बोर रेडियस मतलब लेंथ है, तो L टू द पावर B, प्लैंक्स कांस्टेंट, सो यू नो ml स्क्वायर T टू द पावर -1, इस पे पावर C, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो L T टू द पावर -1 टू द पावर D। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, m टू द पावर -1, L टू द पावर -2, T टू द पावर 4, A टू द पावर 2 इज इक्वल टू, बैलेंस कर लीजिए, m टू द पावर यू नो C, L टू द पावर B प्लस 2C प्लस D। ठीक है, T टू द पावर A माइनस C माइनस D। ठीक है, एंड A टू द पावर A। अब दोनों साइड में कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग A इज इक्वल टू, ठीक है 2, B इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, you know, after the solving you can say B is equal to 1, C is equal to -1, D is equal to -1। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो U is equal to E टू द पावर A की वैल्यू क्या है 2, A0 टू द पावर B 1 अपॉन H इंटू C। योर आंसर इज E स्क्वायर A0 अपॉन SC। योर आंसर इज डी नंबर। नेक्स्ट, in the given figure, given circuit, charge Q2 on the 2 MF capacitor
ठीक है. Changes as C is the varied from 1 microfarad to the 3 microfarad. Q2 as a function of C is given properly. Figures are drawn systematically and are not to scale by. Then which one is the correct option? तो देखो ये एक्चुअल में फिगर दिया हुआ है 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड C और एप्सिलॉन. ठीक है. तो यू नो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ये 2 और 1 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, और ये इसके साथ सीरीज, तो पैरेलल में है तो 3 हो गया और इसके साथ ये सीरीज है. तो यू नो 3 इंटू सी अपॉन 3 प्लस सी. टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 3C अपॉन 3 प्लस सी इंटू Q इज इक्वल टू CV. तो लिख दिया, ये टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज. एंड यू नो चार्ज ऑन 2 कह रहा है ना, तो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ये म्यू फेराड होगा, मिस्टेक से MF लिखा हुआ है. चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर is equal to, you can say Q2 is equal to 2 upon 2 plus 1 into Q. तो 2 upon 3 into Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 3C epsilon upon 3 plus C. 3 and 3 cut. So you can say that here 2 epsilon upon 1 plus, ठीक है, 2 CC कट गया ना, 3 कट गया, तो 2 epsilon upon 3 plus C. 3 plus C. थ्री प्लस सी. नाउ तो अब 2 एप्सिलॉन अपॉन 3 प्लस सी यहाँ है. अब सी को इस टर्म में लिख दीजिए, ठीक है, इक्विवेलेंट टर्म में. तो क्या लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी एप्सिलॉन, तो 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन सी. सो क्लियरली यू कैन से दैट dQ2 अपॉन dC इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये ग्रेटर देन 0. एंड d2q2 अपॉन dc स्क्वायर इज लेस देन 0. so you can say that q square c curve has a decreasing slope, has a decreasing slope. so your answer should be, decreasing slope is here, so your answer should be B number. मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, 1 से 3 में जा रहा है, 3 से 1 में डिक्रीज होता जा रहा है. so your answer is B number. The question contains statement 1 and statement 2. Of the 4 choices given after the statement, choose the one the best describes the two statements. For a charged particle moving from point P to point Q, the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of the path connecting point P to the point Q. Which is the correct? You know, work done is the by conservative force does not depend on the path. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है. सो योर आंसर इज बी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. of the 4 choices given after the statement, choose the one that best describes the two statements. An insulating solid spheres of radius r has a uniformly positive charge density rho. As a result of this uniform charge distribution, there is a finite value of electric potential at the center of the sphere, at the surface of the sphere, and also at the point outside the sphere. The electric potential at infinity is 0. Statement 1 is here. When a charge Q is taken from the center of the surface of the sphere, its potential energy changes. ये आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है. ठीक है, ये 2012 में AI-EEE ने इस क्वेश्चन को पूछा था और जेई ने इसको 2007 में क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है ये. ठीक है, तो आप लोगों के लिए नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ, देख लो ऐसे. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज लेस देन r, तुम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब रो. सो यू कैन से दैट E इज इक्वल टू कट, रो कट हो गया, तो 3r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. तो यही तो कह रहा है ना,
रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रो 3 को ये कर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट इज योर वर्क डन, ये ना क्वेश्चन में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, यस। तो वर्क इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू r क्यू ई डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r q इंटू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, यह आप लोगों का नहीं है लेवल का, फिर भी मैं कर देता हूँ तो थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। और क्या, q इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r dr फ्रॉम 0 टू r। So you know q rho upon 3 epsilon naught into r square upon 2 from 0 to r. So you can say that q into rho into r square upon 6 epsilon naught. So delta u is equal to w, which is equal to q rho r square upon 6 epsilon naught. और यहाँ क्या कह रहा है, q rho upon 3 epsilon naught, गलत। तो स्टेटमेंट 1 is incorrect, 1 is false. So what should be answer here? Statement 2 is true, statement false. So your answer should be C number. Next question. In the figure is shown a system of 4 capacitors connected across a 10-volt battery. Charge that will flow from switch S when it is closed is so easy. Before switch S is closed, अगर S को नहीं close किया है तब क्या होगा? तो before switch S is closed, you can say that here capacity C1 is equal to क्या हो गया, 2 into 3 upon 2 plus 3, 6 upon 5 microfarad. C2 is equal to 3 into 2 upon 3 plus 5 is equal to क्या हो गया, 3 2 just 6 upon 3 plus 2, yes, 6 upon 5 microfarad, ठीक है। So C1 and C2 both are same 6 by 5 microfarad, and C1 and C2 are in parallel. जब पैरेलल में होता है तो चार्ज दोनों का सेम होता है, तो Q is equal to C1V is equal to C2V is equal to 6 by 5 microfarad into 10 volt. आंसर इज हियर 12 माइक्रोकूलम। ये स्विच जब ओपन था तब की बात कर रहे हैं, सॉरी क्लोज था तब। अब जब आफ्टर स्विच एस इज ओपन था ये ना, ओपन, आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, आफ्टर switch S is closed. So I can say that now C1 and C2 are in series, ठीक है, are in series। तब क्या लिखेंगे, 5 into 5 upon 5 plus 5, 5 5 जा 25 upon 10 is equal to 2.5 microfarad. So charge Q is equal to same C into V, so 2.5 microfarad into 10 is equal to 25 microcoulomb. These charges split on the individual capacitors is proportional to their individuals, yes or no? So your answer should be B to A जा रहा है ना इसमें, ठीक है। So your answer should be 5 microcoulomb from B to A. So your answer is 5 microcoulomb from B to A. So now this lecture is finished. Coming class में हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। Till then, bye as well as best of luck.